ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بابا آپ کا یہ فیصلہ بہت جلد یہ بات ثابت کر دے گا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، فائزہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بابا نے یہ سب کچھ اپنی بہن کی محبت میں آ کر کیا تھا، اسی وجہ سے اسے اس بات پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں اور مجھے معلوم ہے تم لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہترین اور کیا بدتر۔ رفیق صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ ان کو اپنی اس بیٹی پر اکثر اوقات اسی وجہ سے غصہ آتا تھا کیونکہ وہ بہت منہ پھٹ تھی۔ اس کے دل اور دماغ میں جو آتا تھا وہ وہی بول دیتی تھی۔ میں مانتی ہوں کہ آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن آپ ایک بہترین باپ ہونے سے زیادہ ایک زیادہ اچھے بھائی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ پہلے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بات آپ کو خود بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں زیادہ اچھا سوچتے ہیں اپنے بچوں کے مقابلے میں۔ اس کی ماں نے اسے گھور کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جاتے جاتے یہ بات کہہ گئی تھی، اور رفیق صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ دیکھا ہے کیسے وہ اپنے باپ کو آنکھیں دکھا کر گئی ہے اور اس کی نیت پر شک کر کے گئی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فائزہ کا دماغ درست کر دیں، لیکن اس وقت خاموشی سادھ لینا ضروری تھا کیونکہ ان کی بہن بھی اس گھر میں موجود تھی۔ فائزہ غصے سے کمرے میں آئی تو اس کی بہن زنیرہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، چپ چاپ اور سوگوار سی۔ تم کب تک یوں لبوں کو تالا لگا کر بیٹھی رہو گی؟ کم از کم اب تو اپنے لب آزاد کر دو۔ جب تک تم خود اپنے حق کے لیے نہیں بولو گی، کوئی دوسرا شخص کبھی بھی تمہارے حق کے لیے نہیں بول سکے گا۔ غصے سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر ہی پھوڑ دے، جو ڈر کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں یار؟ معلوم ہے کہ بابا کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ پپھو نے آ کر جو کہانی سنائی ہے بابا نے اس پر یقین کر لیا ہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں وہ اپنے بچوں کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ دکھ سے کہتے ہوئے اس نے فائزہ کو دیکھا، جبکہ فائزہ نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جان چکی تھی اور یہی بات اپنے بہن بھائیوں کو بھی سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی عقل میں یہ بات سما ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیں کبھی ترجیح دیں گے بھی نہیں، کیونکہ پہلے اماں نے لبوں پر کفر لگا کے رکھا اور اب تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تم بھی خاموشی سے دیکھ رہی ہو کہ کوئی معجزہ ہوگا۔ یاد رکھو تھوڑی بہت کوشش تمہیں کرنی پڑے گی، اس کے بعد یقین کرو۔ فائزہ اپنی طرف سے ساری جنگ لڑ آئی تھی، مگر اسے معلوم تھا کہ جب تک زنیرہ خود نہیں بولے گی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر زنیرہ ڈر کر بیٹھی ہوئی تھی، یا باپ کا احترام اور مان آڑے آ رہا تھا۔ وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ فائزہ، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اپنے باپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے کی؟ کمرے میں آتے ہوئے اس کی ماں نے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جب آپ لوگ بات نہیں کریں گے اور گھر میں صرف ایک انسان بولے گا تو اس کی سیدھی باتیں بھی آپ کو بدتمیزی ہی لگیں گی۔ حالانکہ میں نے ان سے بس یہ کہا تھا کہ پپھو کو ساری زندگی ہماری یاد نہیں آئی، ساری زندگی تو وہ کبھی ہمیں ملنے یہاں پر نہیں آئی۔ اب اپنا بیٹا جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور اپنی مرضی سے شادی کر چکا ہے، اس کے لیے کیوں رشتہ لے کر آئی ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد اس لڑکی کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی شادی کرنے کی تک کیا ہے۔ آپ یقین کریں اس شادی کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، اس لیے مجھ سے مت پوچھیے گا۔ فائزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ اٹھا کر اپنے ہی سر میں دے مارے، کیونکہ یہاں پر کوئی اور اس کی بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ اس کی بات سن کر زنیرہ کا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ ایسا تو اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ دیکھو وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں،
इतनी उनकी ज़मीनें हैं और हर तरह से वो बहुत वेल ऑफ लोग हैं। उनके बेटे की पहली शादी नहीं चल सकी तो वो शायद इसीलिए जल्दी शादी करना चाह रही हैं कि वो दोबारा उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में ना लेकर आए, क्योंकि वो कह रही हैं कि उसके ससुराल वाले बहुत तेज़ किस्म के लोग हैं। तो जब वो अपनी भतीजी ले आएंगी तो वो उसके लिए लड़ लेंगी। उन्होंने कहा कि पहले ही उनका यही दिल था कि वो आलियान जतोई के लिए जुनैरा का रिश्ता लेंगी, लेकिन उससे पहले उसने अपनी मर्जी कर ली थी, जबकि वो इस शादी के लिए खुद राजी है। उसके ससुराल वाले उसकी बीवी को नहीं भेज रहे, जिसका मतलब ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि तलाक दें, ताकि जो इतनी ज़्यादा जायदाद लिखी है वो उसके नाम चली जाए। अम्मा ने तफसीलात से उसे आगाह किया तो वो बजाय उलझन को सुलझने के वो मज़ीद उलझ गई थी। पुप्पो ने आकर जो कहा आपने उस पर यकीन कर लिया। क्या कहने आप दोनों के? दरअसल शायद बेटियां आप पर बोझ बन गई हैं और आप उनको किसी तरह उतार कर फेंक देना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए जंग लड़ने की कोशिश की थी जुनैरा। जब तक तुम खुद नहीं बोलोगी तो मेरा बोलना सिर्फ उनको शोर लगेगा, लेकिन जब तुम्हें ही एतराज़ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये बात लिख कर देने को तैयार हूँ कि चंद महीनों के अंदर अंदर आपको अपने फैसले की संगीनी और गलती का बहुत अच्छी तरह एहसास हो जाएगा। मैं ये दुआ ज़रूर करूँगी कि आप लोगों को एहसास होते होते ज़्यादा देर ना हो जाए। वो वडेरे जैसी रिवायतों में फंसी हुई पुप्पो यकीनन कोई बड़ा तूफान लेकर आई हैं। नफ़ी में सर हिलाकर उन दोनों की आंखों में बैक वक्त देखने के बाद उसने जिस अंदाज में कहा तो माँ बेटी ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा और वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। बेटा तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हें पता है ये सदा की जज्बाती लड़की है, इसको कुछ पता नहीं है। तुम्हारे बाबा बहुत सोच समझकर फैसला करने वाले इंसान हैं और तुम्हें मालूम है वो तुम दोनों बहनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। उनको पता है कि हम जैसे आम घराने के लोगों में इतना अच्छा रिश्ता दोबारा कभी नहीं आएगा, और वैसे भी पुप्पो तुम्हारी अपनी है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगी। आलियान भी एक बार हमारे घर आया था, वो भी काफ़ी अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। मामा ने ऐसे उसे ढेरों तसल्ली दे दी थी। वो उनसे नहीं कह सकी थी कि उनका दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं था, लेकिन उनका मान रखने की खातिर वो खामोश हो गई थी। मज़ीद एक दिन पुप्पो वहाँ पर रहीं और फिर अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि पुप्पो ने कहा था कि अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहते तो किसी काबिले भरोसा दोस्त की बेटी का रिश्ता ही करवा दें। तो अब्बा को लगा कि बस इससे बेहतर तो कोई और उनकी बेटियों के लिए रिश्ता नहीं आ सकता। ये बाप अपनी बहनों के साथ अपने ताल्लुक़ और रिश्तों को बहाल रखने के लिए बच्चों की कुर्बानी दे देते हैं, चाहे सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों को वहाँ पर मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना क्यों ना करना पड़े। मगर उनको ये गलत फहमी होती है कि हमारी बहन है तो वहाँ पर बच्चे खुश रहेंगे, लेकिन कभी कभी ये ज़िंदगी का गलत तरीन फ़ैसला होता है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये फ़ैसला गलत तरीन नहीं बदतरीन होने जा रहा था। चंद दिनों बाद शादी की तारीख रख दी गई। चूँकि फ़ायज़ा BBA कर रही थी तो इसीलिए वो हॉस्टल चली गई थी। उसने कहा था कि वो शादी में बिल्कुल शिरकत नहीं करेगी। अम्मा अब्बा और जुनैरा ने उसे बहुत फ़ोन किए थे, मगर उसने कॉल नहीं उठाई थी। वो जुनैरा बहुत परेशान थी क्योंकि कल उसकी मेहंदी थी और उसकी बहन अभी तक घर वापस नहीं आई थी और उसने किसी भी काम में किसी किस्म की कोई मदद नहीं करवाई थी। वैसे ही सारे कपड़े और बाकी सामान पुप्पो दे गई थी, मगर फिर भी कुछ तैयारियां लड़की वालों को फिर भी करनी पड़ती हैं। उन्होंने किसी किस्म का जहेज का सामान लेने से इनकार कर दिया था, मगर फिर भी शादी वाला घर था तो 100 किस्म की तैयारियां करना ज़रूरी थी। लेकिन फ़ायज़ा तो जैसे हर काम से हाथ उठा चुकी थी और यूं लग रहा था कि उसकी बहन की नहीं, मोहल्ले में किसी की शादी हो। कितनी बार कॉल करने के बाद जब उसने कॉल ना उठाई और मैसेजेस को भी नज़रअंदाज कर दिया तो जुनैरा के पास उसके हॉस्टल जाने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं बचा था, क्योंकि उसे मालूम था कि फ़ायज़ा बहुत ज़िद्दी थी
अगर वो अपनी बात पर अटक गई तो वो शादी पर नहीं आएगी, और अगर वो शादी पर ना आती तो उसे लोगों की बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट के लिए अपनी बहन को अपने साथ रखना चाहती थी। उसे इस लम्हे अपनी बहन की बहुत ज़रूरत थी। उसके गले लगकर वो बहुत रोना चाहती थी। उसे मालूम था कि अगर वो ये सब कर रही थी तो ये एक किस्म का एहतजाज था, और वो उसके भले के लिए ही एहतजाज कर रही थी। जुनैरा उसके हॉस्टल गई तो उसकी दोस्तों ने बताया कि वो आज कॉलेज भी नहीं गई थी और कमरे में बंद है। 100 तरह के ख्याल आए तो काफ़ी परेशानी से उसके कमरे में गई। दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी और आने वाले तमाम बुरे ख्यालात को बुरी तरह झटक रही थी कि सब कुछ ठीक हो। और उसे कमरे में खिड़की के पास बैठा देखकर उसकी जान में जान आई तो फ़ायज़ा उसे देखकर चौंक गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुनैरा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था और उसके गले लग गई और रोने लगी तो फ़ायज़ा बहुत परेशान हो गई। प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है, बताओ, और यार यूँ रो तो मत। अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए उसने इसे देखा और ख़ुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। चंद लम्हों बाद जुनैरा ने खुद को कंपोज कर लिया। देखो, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये शादी कभी ना करती, लेकिन कभी कभी वालिदैन का मान रखना पड़ता है, और उनका मान रखने के अलावा इंसान के पास कोई और चारा नहीं होता। मैंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है। देखो, बाबा ने अगर फैसला कर लिया है तो मैं अब उनको लेट डाउन नहीं करना चाहती। इस मुश्किल घड़ी में मेरी ताकत सिर्फ तुम हो, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो मुझे समझती हो और मेरी अज़ियतों से वाकिफ़ हो। प्लीज़ मुझे यूँ तन्हा मत छोड़ो। आज मेहंदी है और कल मैं वहाँ से चली जाऊँगी। वहाँ से जाने से पहले एक रात तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करके गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ज़िंदगी वहाँ मेरे लिए किस तरह होगी। शायद हालात ऐसे होंगे मुझसे तुम्हारा साथ छिन जाए। प्लीज़ वक्त को ये सब कुछ छीनने दो, मगर तुम खुद मेरे साथ ये ना करो। उसकी आंखों में अजियत देखते हुए फ़ायज़ा को एक पल को लगा था पिघलने में, और इस बात का एहसास होने में कि जल्दबाजी में उसने अपनी बहन की आंखों में इनकार तो देखा ही नहीं था। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन फिर भी बाप के आगे उसने सर झुका दिया था। अपने हक के लिए नहीं बोली थी, क्योंकि कभी कभी बाप का मान रखना ज़रूरी होता है, अपने हक के लिए बोलने से भी ज़्यादा। उसके साथ जब वो घर आई तो अम्मा और अब्बा उसे देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसने किसी किस्म की कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। बस खामोशी से उनको सलाम करने के बाद वो कमरे में आ गई। उन दोनों बहनों ने सारी रात बहुत बातें की, लेकिन किसी ने भी फ्यूचर के बारे में कोई पेशंगोई नहीं की थी। हालांकि दोनों को डर लग रहा था। कभी कभी हमारी गट फीलिंग बिल्कुल सच कह रही होती है, जिसको हम बुरी तरह नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। छठी हिस्स जब किसी चीज़ के बारे में खबरदार करे तो इंसान को खबरदार हो जाना चाहिए। अगले रोज़ ख़ानदान के कुछ लोग थे और छोटी सी मेहंदी की रस्म कर दी गई, और फिर पता नहीं कितनी देर बैठकर दोनों बेबस खामोशी से रोती रहीं और बस दुआएं मांगती रहीं कि उनके खदशात सच ना हों। लेकिन कभी कभी इंसान को आने वाले वक्त का एहसास पहले ही हो जाता है और वो पहले ही रोना शुरू कर देता है। बारात वाले दिन दुल्हन बनी वो बेहद हसीन लग रही थी। फ़ायज़ा ने उसका गाल चूमते हुए उसकी अच्छी किस्मत की दुआ दी थी। आलियान जतोई बारात लेकर आ चुका था और फ़ायज़ा उसे बहुत जजमेंटल नज़रों से देख रही थी। पुप्पो का रवैया तो उसे काफ़ी हद तक इत्मीनान दिला गया था कि शादी बहुत नॉर्मल रहेगी, मगर आलियान के रवैये से उसे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया था कि क्या वो इस शादी से खुश था या वजह कोई और थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा चुप नज़र आ रहा था या शायद बेजार था। जाकर दूध पिलाई की रस्म कर लो, मामा ने उसे कहा तो सर को हिलाते हुए वो 2-3 कज़नों के साथ स्टेज की जानिब बढ़ गई। दूल्हे भाइयों के नाम पर उसका सगा भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसने
अहल को कभी नहीं देखा था, लेकिन बस इतना जानती थी कि पुप्पो के 2 बेटे थे। एक का नाम आलियान और दूसरे का नाम आहिल था, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जिमरा था। आपकी तरफ से जंग कौन लड़ेगा कि पैसे कम देने हैं या ज्यादा देने हैं? अपने लहजे को हतौल इम्कान उसने नॉर्मल रखते हुए आलियान की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आज हमारा जंग करने का कोई इरादा नहीं है। हमने किसी और वक्त के लिए इसको रख दिया है, बल्कि यूं समझे कि हम दानिस्ता चाह रहे हैं कि आज आप जीत जाएं। उसका लहजा बहुत नॉर्मल था, लेकिन उसके अल्फाज फायजा को बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगे थे। सॉरी, थोड़ी सी वजाहत कर सकते हैं? मैं आपको पॉइंट नहीं समझ सकी। अपनी ओवर थिंकिंग को एक तरफ रखते हुए उसने आलियान की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कुछ नहीं मोहतरमा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहती हैं कि जंग आज ही हो जाए तो फिर हो जाए। आलियान बोल ही रहा था कि उसका भाई आहिल जतोई वहां पर आ गया और बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया। वो बहुत परेशान हो गई और उड़चती हुई कभी आलियान, कभी जुनैरा और कभी आहिल को देख रही थी। एक बहुत गहरी खामोशी उन तीनों के दरमियान आ गई थी। अरे आप डर क्यों गई? ये मजाक कर रहा था। आलियान ने एक चुभती हुई नज़र आहिल पर डालने के बाद उससे कहा, अच्छा ठीक है, आप बताएं कि आपको दूध पिलाई के कितने पैसे चाहिए? आलियान का रवैया अब एकदम नॉर्मल हो गया था, जो उसे यूं लग रहा था कि जैसे वो कोई बात छुपाने को ये रवैया नॉर्मल रख रहा है। जो आप मर्जी दे दें। वैसे भी उसे शादी की कोई ख़ास खुशी नहीं थी, और ये रस्म भी वो बिल्कुल खुशी से नहीं कर रही थी, मगर किसी को बात करने का मौका नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो खामोशी से स्टेज पर आ गई और फिर उन सब पर छोड़ दिया। तो आहिल जतोई ने बड़ी गहरी नज़रों से उसे देखा। जिंदगी पता नहीं आपसे और कितने समझौते करवाएगी, और आप पहले ही दिन इतने समझौते कर रही हैं। बज़ाहिर मुस्कुरा कर कह रहा था, लेकिन उसके लफ्ज़ों में कोई नश्तर थे जो उसे अपने सीने में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। क्या हो गया है? पागल हो तुम आहिल? बच्ची को इतना परेशान क्यों कर रहे हो तुम? सफदर जतोई ने अपने बेटे को घूरा। उनको अच्छी तरह मालूम था कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसीलिए उसे वार्निंग नज़रों ही नज़रों में दे दी थी। जबकि आहिल जतोई की मुस्कुराहट ऐसी थी कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी थी। दूध पिलाई की रस्म ख़त्म हो गई। बाकी चंद एक रस्मों को भी अदा किया गया और फिर बहुत अच्छे अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। और एक और रस्म दुनिया का वक्त आ गया, यानी कि रुखसती का वक्त। सबकी आंखों में नमी थी कि बेटी की रुखसती वो वाहिद लम्हा होता है जिसमें सबकी आंखें नम होती हैं। किसी को अपना वक्त याद आ रहा था तो किसी को अपनी बेटी का वक्त याद आ रहा था। कोई बहन के लिए रो रहा होता है और कोई सहेली के लिए। तुम यहाँ से रुखसत हो रही हो, मगर ये मत समझना कि तुम हमारे दिलों से भी जा रही हो। इसलिए ज़रा सा भी मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगी और तुम्हें जज नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अपने ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म मत होने देना। फायजा ने अपने आंसुओं के बाद उसके आंसुओं को पोंछा और अपने साथ का यकीन दिलाया। जबकि आहिल जतोई से उसकी नज़रें मिली तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने नज़रों का रुख बदल लिया। मुझे इस गैर मामूली शादी की वजह जाननी है। आहिल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब उसे अपने अकब में यह आवाज़ सुनाई दी। वो रुका और पलटकर उसकी तरफ देखा, जो नीले रंग के फ्रॉक में नफासत से किए गए मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तुमने ये सब जानने में बहुत देर कर दी। आहिल ने गहरी सांस लेने के बाद उसे देखा। अंदाज सरासर लापरवाह सा था। किसी भी काम में कभी देर नहीं होती। प्लीज़ मुझे बता दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मैं अब अपनी बहन के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी बहन के मामले में किसी किस्म की कोताही मत बरतिएगा। इतना कहकर उसको परेशानी में डालकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। अगले रोज़ उनका वलीमा था और वहाँ पर जुनैरा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वहाँ पर सब कुछ ठीक था
और उसने भी बस यही सोच लिया कि जाहिर सी बात है शादी के शुरू के दिन तो अच्छे ही गुजरेंगे। उसके बाद वो वापस अपने हॉस्टल चली गई और तकरीबन 3-4 माह बाद वो वापस आई। जुनैरा से मिले हुए उसे अरसा हो गया था। अम्मा ने बताया था कि वो 1-2 बार उनसे मिलने आई थी, लेकिन वहाँ उसकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ थी, क्योंकि घर की बड़ी और इकलौती बहू होने के नाते तमाम जिम्मेदारियां उसके सर पर आ गई थीं। उसका भी रिसर्च वर्क चल रहा था, इसीलिए वो काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। जुनैरा के साथ उसके फ़ोन पर कभी कभार बात हो जाया करती थी और वो इसे यकीन दिलाती थी कि सब कुछ ठीक है। ज़िंदगी थोड़ी सी मसरूफ़ हो गई थी और एक एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करने वाली बहनों के पास अब इतना वक्त नहीं बचा था कि एक दूसरे से बात ही की जाए। उसके बाद उसका रिसर्च वर्क मुकम्मल हो गया तो वो बहुत ज़िद करके जुनैरा के घर गई। वहाँ जाकर जो मंज़र उसने देखा तो तमाम खदशात दिल से उतर गए थे। वो उसे वहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। गो कि उसने सोचा था वो सरप्राइज़ देगी, लेकिन फिर भी एक बार उसने कॉल करके आलियान को बता दिया था। अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गई। उसके साथ बहुत सी बातें कर रही थी कि इतनी देर में आलियान आ गया। थोड़ी देर बैठी तो फिर घर से कॉल आ गई और बताया कि अब्बा की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से उसे वापस आना पड़ा। लेकिन जब घर पर वापस आई तो उसे इल्म हुआ कि अब्बा बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अम्मा ने कहा कि यूँ बहन के ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं है। उससे अम्मा पर शदीद गुस्सा आया था, क्योंकि अभी तो उसने जुनैरा से बहुत सी बातें करनी थीं। एक नया ख्याल उसके जहन में समाया तो उसने आलियान को कॉल की कि उसे कुछ दिन के लिए घर भेज दे, लेकिन आलियान ने कह दिया कि उसके बगैर नहीं रह सकता। उसे ये सुनकर जहाँ खुशी हुई थी वहाँ गुस्सा भी आया था कि वो उसकी सगी बहन थी और शादी के बाद उन दोनों के पास एक दिन भी नहीं था कि वो इकट्ठे बेफिक्री के साथ गुजार सकती। अम्मा मुझे वो खुश लग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे यूं लग रहा था कि खुश लगने से ज़्यादा ये प्रिटेंड कर रही है। पूरी रात सोचने के बाद वो अगले रोज़ अम्मा के सामने बैठे हुए कह रही थी, तो अम्मा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। तुम ज़रा ओवर थिंकिंग कम किया करो। तुम्हारी बचपन से आदत थी कि ज़रा सी चीज़ को यूं ही बिला वजह सोच सोच कर खुद को तो परेशान करती हो, दूसरों का जीना भी मुहाल कर देती हो। बहुत सी बातें इंसान को खुद तक रखनी चाहिए। अम्मा ने उसे डांटा। लेकिन अम्मा, आपको एक बार उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं उसकी वहाँ पर। इससे पहले भी तो वो घर चल रहा था ना। अब वो एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं आ सकती और आप लोग इस बात पर खामोश हैं। उसको अब अम्मा पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि उनकी शादी को 5-6 महीने हो गए थे, वो एक बार भी यहाँ रहने नहीं आई थी। देखो, शादी के बाद इंसान को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। अब जब उसके ससुराल वाले इस बात के लिए रजामंद नहीं हैं, तो हम फोर्स कैसे कर सकते हैं? बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो अपने घर में खुश है। इन दोनों माँ बेटी के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसलिए दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वही तो मुझे हैरानी है कि हमारे बगैर खुश है। दाल में कुछ काला ज़रूर है अम्मा, और मैं जल्द पता लगवा कर रहूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, जबकि अम्मा ने सर पकड़ लिया था कि ये लड़की पता नहीं कौन सा नया चंद चढ़ाएगी। मज़ीद चंद दिन गुजरे तो उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई थी और इन्हीं दिनों में आलियान ने उसे अपने दफ्तर में नौकरी की ऑफ़र कर दी थी। पहले तो उसने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था, क्योंकि उसने ये सोचा था कि वो अपने कैरियर में किसी का कोई एहसान नहीं लेगी। लेकिन फिर कुछ दिन आगे पीछे जूतियाँ घिसाने के बाद उसे इल्म हो गया कि इस शहर में नौकरी ढूंढना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। फिर जब उसने आलियान को ये कहकर फ़ोन किया कि इसे उनकी ऑफ़र मंजूर है, तो उसने अगले दिन ही उसे दफ्तर में आने को कह दिया और साथ में मना भी कर दिया था कि वो ये बात अपनी बहन से बिल्कुल शेयर ना करे। तो अब की बार फ़ायज़ा कुछ मशकूक सी हो गई और कहा कि क्यों शेयर ना करे, वो तो अपनी हर बात अपनी बहन से शेयर करने की आदी है। उस पर आलिया ने उसे ये कहा कि हम उसे सरप्राइज़ देंगे तो वो खुश होगी।
इसे कुछ समझ नहीं आया, मगर इसने फिलहाल आलियान की बात मान ली। और फिर अगले दिन वो उनके दफ्तर में चली गई तो आलियान ने चंद एक ज़रूरी सवाल पूछने के बाद उसे हायर कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब इस बात की खबर जुनैरा को हुई तो उसे शदीद गुस्सा आया था और उसने कहा था कि तुम्हें यहाँ ही नौकरी करनी थी। अपने बड़े शहर में तुम्हें यही ऑफिस मिला था, तुम्हें कहीं और करनी चाहिए थी। उसे जुनैरा के इस गुस्से और इस बात की समझ नहीं आई थी। उसने बहुत सी वजाहतें देने की कोशिश की, जबकि जुनैरा ने उसे ये कह दिया था कि जल्द अज जल्द कहीं और नौकरी तलाश करो, तुम्हें यहाँ पर नौकरी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और वजह उसने नहीं बताई थी और उसे पूछने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन इसे यही लगा कि शायद वो जेलस हो गई है, सो उसने ये बात छोड़ दी थी कि जब मिलेगी तो पूछ लेंगे। तकरीबन उसे वहाँ पर नौकरी करते हुए महीना हो गया था और उसे एक चीज़ का अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया था कि आहिल जतोई दुनिया का मुनाफिक तरीन और बदतमीज़ तरीन इंसान था। वो जो काम खुद करती थी वो आगे ये कह कर देता था कि ये उसने खुद किया है। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो इस कंपनी का ओनर होने के बाद भी क्यों आलियान की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। ये बात तो वो बहुत अच्छी तरह से जान गई थी कि वो आलियान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनके आपस के क्लैशेस के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि आहिल जतोई काबिले भरोसा बिल्कुल नहीं था। पता नहीं क्यों दिल ही दिल में आहिल जतोई से नफरत करने लगी थी और उसे शदीद नापसंद करने लगी थी कि रुखसती के वक्त उसने किस तरह के ख्यालात इसके दिमाग में डाल दिए थे, जबकि उसकी बहन बहुत खुश थी। यूं ही कई दिन गुजर गए कि अचानक उसे कॉल आई। देखा तो रॉन्ग नंबर था। वैसे वो रॉन्ग नंबर पिक नहीं करती थी, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या ख्याल आया कि उसने रॉन्ग नंबर उठा लिया। मेरी बात सुनो, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं जुनैरा बात कर रही हूँ और तुम किसी को नहीं बताओगी कि मेरी कॉल आई थी। इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं इस जतोई ख़ानदान के मुखालफीन की हिरासत में हूँ। तुमने पैनिक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि एक काम करना है। जतोई ख़ानदान वाले बिल्कुल भी काबिले भरोसा नहीं हैं, सो तुम इस वक्त एक जतोई के दफ्तर वाले कमरे में जाओगी। वहाँ पर एक नीली रंग की कोई जायदाद की फाइल होगी, तुमने वो वहाँ से उठा लेनी है और लेकर मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पर पहुँचा दो। उन लोगों ने मुझे छोड़ने की ये शर्त रखी है। मैंने आलियान को फ़ोन किया था तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं, मगर वो फाइल नहीं देंगे, इसलिए तुम उनसे किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखना। आलियान खुद मुझे उनके चुंगल में छोड़ कर गए हैं, इसलिए प्लीज़ फाइल लेकर जल्द अज जल्द तुम वहाँ पर आ जाओ। मेरी जान और मेरी इज्जत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जुनैरा डरी और रोती हुई आवाज़ में कहती हुई उसे बहुत परेशान कर गई थी और वो पैनिक नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी तो उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। तभी दरवाजे पर झटका हुआ। इसे लगा जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो, मगर फिर इस बात को वहम गर्दान दिया। नफ़ी में सर हिलाकर उसने अपना सर मेज़ पर रख दिया, थके और बेबस वाले अंदाज में। सारे खदशात सच हो गए थे और उसे इस चीज़ का दुख था। अब ख्याल आया कि क्यों उसकी बहन ने उसे यहाँ नौकरी करने से रोका था। कितनी देर तो उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये कॉल जुनैरा ने ही की थी। जब बाकायदा तौर पर उसे इस बात का यकीन आ गया तो उसने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी चीख को बड़ी मुश्किल से रोका। दिल चाह रहा था कि ऊंची ऊंची आवाज़ में रोए और जतोई ख़ानदान वालों से नफ़रत का ऐलान करे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो दफ्तर से बाहर निकली और उसका रुख अब आहिल जतोई के कमरे की तरफ था और इसे कुछ इल्म नहीं था कि वो वहाँ से फ़ाइल कैसे निकालेगी। लेकिन इस वक्त फ़ाइल निकलवाना दुनिया का ज़रूरी काम और मुश्किल तरीन काम था। तभी उसने देखा कि उस वक्त वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ फ़ायज़ा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसकी आवाज़ पर वो डर कर चौंकी और उसकी तरफ देखा। उस वक्त वो बहुत बौखलाई हुई लग रही थी।
تو بڑی مشکل کے ساتھ اس نے خود کو کمپوز کرنے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ابرو چکاتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ یس، میں چائے لینے جا رہی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ چند ہی لمحوں میں اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنا دماغ حاضر رکھنا بہت ضروری تھا، اور خود کو نارمل رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آلیان اور آہل دونوں بہت زیرک نگاہ رکھتے تھے، تو ان سے بچ کر رہنا بہت مشکل کام تھا۔ ہاں، میری ایک میٹنگ ہے، تو میں 3-4 گھنٹوں کے لیے دفتر سے باہر جا رہا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اسے جب جانے کا یقین ہو گیا تو وہ بھاگ کر اس کے آفس میں آئی۔ اب فائزہ اس کے کمرے میں جلدی جلدی فائل تلاش کر رہی تھی۔ یہ آہل جتوئی کا آفس تھا، سو اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی نے یہاں پر دیکھ لیا تو بہت سے سوال بھی اٹھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر بلو کلر کی فائل پر پڑی، جسے اس نے جلدی سے کھولا۔ اندر موجود کاغذات کی یقین دہانی ہو گئی، اور فائل ملنے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اب وہ آفس سے نکلنے ہی لگی تھی کہ آہل آفس میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر تو فائزہ کے حواس معطل ہو گئے تھے، ہاتھ پاؤں ایک بار پھر سے کانپنے لگے، لیکن پھر بھی اس نے خود کو کمپوز کر کے ایک بیک اپ سپیچ تیار کر لی تھی کہ وہ آفس میں آنے کی کیا وجہ بتائے گی۔ اور آہل نے جب اندر سے آفس کا دروازہ لاک کیا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے اس شخص پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ فائزہ نے فائل کمر کے پیچھے چھپانی چاہی۔ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پہلے ہی شک تھا تمہارے حسین چہرے کے پیچھے کھوٹ ہے۔ فائزہ کی بلو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ بولا، اور فائزہ کو دیوار سے لگاتے ہوئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ سے دور رہو آہل جتوئی۔ بہت مشکل سے وہ یہ بات کہہ پائی تھی، کیونکہ اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی۔ کس کو دینی ہے یہ فائل؟ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ جس کو بھی دوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دانت پیس کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دیکھا۔ محترمہ، یہ میرے دفتر سے میری پراپرٹی کی فائل چرا کر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ واؤ، داد دینی پڑے گی۔ ہٹتے ہوئے اس نے تالیاں بجاتے انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں بجایا۔ میری بہن اس وقت مصیبت میں ہے، اور مجھے یہ فائل وہاں لے کر جانی ہے۔ اس نے جس انداز میں کہا تو وہ چونک گیا۔ مصیبت میں؟ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ایک پل میں بدل گئے تھے۔ جیسے تمہیں علم نہیں ہوگا، تمہارے بھائی نے میری بہن کو اپنی مرضی کے ساتھ تمہارے خاندانی مخالفین کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے زنیرہ کی کال آئی تھی۔ دیکھو آہل، پلیز، جائیداد دوبارہ بن جائے گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اتنا پیسہ میں تمہیں دوں گی، لیکن اس وقت میری بہن کی عزت اور جان دونوں خطرے میں ہیں۔ پلیز یہ فائل دے دو۔ آہل جو فائل اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا، تو اس نے آہل سے بھیگی آواز میں یہ بات کہی تو وہ چونک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے وہ نمبر دکھاؤ۔ جب اس نے کہا تو اس نے فوراً وہ نمبر اسے دکھایا۔ میں تمہاری بہن کو بچا لاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، لیکن پلیز میری بہن کو بچا لو، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے اس کے سامنے وہ اس لمحے کمزور پڑ گئی تھی، حالانکہ زنیرہ نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ جتوئی خاندان کے کسی فرد پر وہ بھروسہ نہ کرے۔ پہلی شرط تو سن لو، کیونکہ میں ساری پراپرٹی داؤ پر لگا رہا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے ایک چیز کی یقین دہانی چاہیے۔ کیا؟ اسے اپنی بات پر بضد دے کر اس نے پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ فائزہ کو لگا کہ کسی نے اس کے سر پر دفتر کی دیوار گرا دی ہو۔ کیا مطلب؟ الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیکھو، تم نے کہا کہ تم پیسے واپس کر دو گی، یعنی جو نقصان ہوگا تم اس کو بھر دو گی، تو میں کیسے تم پر یقین کروں؟
اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے مجبور کر دی گئی تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے اس بات کی حامی بھر لی۔ میں بس تم سے یہ کہوں گا کہ تم اس بارے میں آلیان بھائی سے کوئی بات نہیں کرو گی، کیونکہ وہ بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے نکاح نامے کا ایک پیپر دیا جس پر ان دونوں نے سائن کر دیے۔ وہ یہ بس اپنی بہن کے لیے کر رہی تھی۔ اس کے بعد آہل کے ساتھ وہ اس جگہ پر گئی۔ وہاں پر آلیان جتوئی اور زنیرہ دونوں موجود تھے۔ زنیرہ تم کیسی ہو؟ وہ بھاگ کر اس کی گلے لگی۔ اور آپ؟ وہ جب زنیرہ کے ٹھیک ہونے کے یقین دہانی کر چکی تو چیل کی طرح آلیان پر جھپٹی تھی کہ زنیرہ نے اسے روک لیا۔ اس کے متعلق ہم بعد میں بات کریں گے، بالکل نارمل ریئیکٹ کرو۔ زنیرہ نے جس انداز میں کہا تو وہ رک گئی۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک گھر کے اندر لے کر گئی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئی ہو؟ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا اور اگلا لمحہ اسے ساکت کر گیا۔ کیا ہوا؟ اسے ٹھنڈا پڑتا دیکھ کر زنیرہ نے فکر مندی سے کہا تو اس کی نظر بالکل سامنے گئی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی نظریں جب سامنے سے ہٹیں جہاں ول یو میری می گلاب کے پھولوں سے لکھا ہوا تھا، اور نظریں پلٹ کر دائیں طرف گئیں تو آہل گھٹنوں پر بیٹھا ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آہل جتوئی جو تم سے کہے تم اس پر یقین کرنا۔ اب تم سب سنبھال لینا، مجھ سے جتنا کہا تھا میں نے کر لیا۔ زنیرہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ الجھتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، جب بھائی کی شادی کرنے کے لیے ہم نے زنیرہ بھابھی کو ڈیسائیڈ کیا تو اس وقت آلیان بھائی شادی کے لیے بالکل راضی نہیں تھے، لیکن ان کی پہلی شادی بری طرح سے ناکام ہوئی تھی اور وہ لوگ بہت گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ اماں کو بھائی کی شادی کی جلدی اس لیے تھی کیونکہ بھائی ڈپریشن میں جا رہے تھے، جبکہ کچھ عرصہ مجھے لگا کہ جیسے آلیان بھائی واپس اس کی طرف پلٹ جائیں گے، اس لیے میں نے رخصتی والے دن تم سے وہ سب کہا۔ میں اپنی جگہ غلط نہیں تھا۔ اس کے بعد بھائی کی پہلی بیوی نے ان سے معافی مانگی اور وہ واپس ان کی زندگی میں آنا چاہتی تھی، اور وہ اس چیز کی اجازت دینے ہی والے تھے کہ مجھے شدید غصہ آ گیا کہ زنیرہ بھابھی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اسی لیے میرے ان کے ساتھ بہت کلیش آ گئے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں بہت بدتمیز اور مغرور لگتا تھا، لیکن سچ کہوں مجھے پتا نہیں تم سے کب سے محبت ہو گئی۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا کہ ایک بار تم سے بات کریں، اور بھابھی نے تم سے بات کی تو تم نے صاف انکار کر دیا۔ تم آہل جتوئی جیسے بدتمیز انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ پھر یہ پلان بنایا جس میں نے کہا بھابھی آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور میں پروپوز کر لوں گا۔ آہل جتوئی نے جب سارا قصہ سنایا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے گم سم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں بہت بدتمیز ہوں، بہت مغرور ہوں، لیکن پلیز میں بہت اچھا بھی ہوں، یعنی میں صرف تمہارے لیے اچھا بن سکتا ہوں۔ پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی نا تو یقین کرو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا خود کو۔ تمہارا دل نہیں مان رہا، پھر بھی ایک بار مجھ سے شادی کر کے دیکھ لو، دیکھنا دل مان جائے گا، اور ویسے بھی اب ہمارا کاغذی نکاح تو ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا، جبکہ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تبھی آہل نے اسے ایک اسکیچ بک دی۔ یہ دیکھ لو، یہاں پر میں نے صرف تمہارے اسکیچز بنائے ہوئے ہیں۔ پلیز میں چاہتا ہوں آلیان بھائی کے بچوں کی تم بیک وقت خالہ اور چچی کہلائی جاؤ۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ وہ بے ساختہ ہنستی۔ ساری ٹینشن، سارے اوہام اور ساری فکریں دور ہوئیں تو اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ کب بارات لاؤں؟ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر آہل کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ اگلے مہینے کی 12 تاریخ کو تمہاری سالگرہ والے دن۔ یہ سن کر
आहिल ने बेयकीनी से उसे देखा और उसको यूं बेयकीन देखकर वो हंस पड़ी और फिर वो दोनों हंसते हुए एक साथ चलने लगे। और बालकनी में खड़े आलियान और जुनैरा भी उनकी खुशी पर मुस्कुरा दिए। अगर कोई इंसान बुरा है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो अच्छा नहीं बन सकता। अगर वो अच्छा बनना चाहे तो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।